Welcome to this video session. In this video, I will read only read just about class 10 political science chapter 6. Class 10 political science chapter 6 and this chapter name is political parties. Political parties means कि राजनीतिक दल को देखिए. पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स कि आपको राजनीतिक जो दल होते हैं उनको यहाँ पर आप देखिए. जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसको यहाँ पर देखिए. इन दिस टूर ओवरव्यू मतलब आपको परिचय यहाँ पर देखिए. परिचय के अंतर्गत हम यही आपको कहेंगे. ये आपको परिचय देखिए. इन द टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम्स. पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम्स वी हैव कम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सेवरल टाइम्स. तो सबसे देखिए in this tour of democracy, we have come across political parties several times. In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in the making and working of government. In this textbook, we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power, and as negotiators, and as negotiators of social division in the arena of democratic politics. And has a negotiation and has negotiators of social division in the arena of democratic politics. Before concluding this tour, before concluding this tour, let us before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties, especially in our country. We begin by asking two common questions: why do we need parties? How many parties are good for a democracy? In the light of this, we introduce the national and regional political parties in today's India, and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है. कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है. इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मूल तोड़ करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है. इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें. खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है. इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हुई है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है. तो यहाँ पे एक जो खास बात आपको कही गई है, देखिए व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है. तो यहाँ पर कुछ बातें देखिए. देखिए सो you agree with me parties are partisan and lead to partisan. Parties do nothing but divide people. That is their real function. एक यहाँ पे कहा गया क्या कि हाँ आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं. दल जो होते हैं वो पार्शियल मतलब पक्षपाती होते हैं. भेदभाव और फूट पार्टीशन एंड लीड टू पार्टीशन. भेदभाव और फूट डालते हैं. दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करती, यही उनका असली काम है. अब देखिए यहाँ पर राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों, यहाँ पर जो कहा गया राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों. तो वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी. देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties.
Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. But chances are that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to the very critical. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to. They tend to. They tend to they tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions, and therefore it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. No, there are few that don't have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. अब देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। राजनीतिक दल हैं। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाए और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बरहा राजनीतिक दलों तो यहाँ देखिए क्या बरहा राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियाँ बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग कुछ है, क्या मीनिंग देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ देखिए, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखिए, मतलब राजनीतिक दल का अर्थ देखिए, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट they agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all. तो यहाँ पे देखिए क्या राजनीतिक दल की बात यहाँ देखिए क्या जो कहा गया, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर इसे लेकर आपको सबकी जो राय होती है वो अलग-अलग, सबकी राय आपको अलग-अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो बातें आपको आपको इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली एक फिगर यहाँ पर दिया गया है, देखिए इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक फिगर दिया गया है क्या कि देखिए इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली बैंड वार राइटिंग। देखिए इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली बैंड वार राइटिंग बाय पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर्गू दैट वाज द
cheapest way for their campaign. देखिए these election times used to create amazing graffiti on the walls. Here are some example from Tamil Nadu. अब यहाँ पर देखिए क्या चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश लोगों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है आपको दीवार पेंटिंग का आप एग्जाम्पल भी दिया गया है। फिर एक और आपको फिगर जो है उसमें यह देखिए, इसमें कहा गया क्या कि देखिए वेयर हैव द नेशन इन पीरियड द नेशन इन पीरियड आपके यहाँ पर कहा गया, मतलब राष्ट्र खतरे में है। अब यहाँ पर देखिए क्या कि एक और कर दे, वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गोन एट ए टाइम लाइक दिस। वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गोन एट ए टाइम लाइक दिस। इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए, इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता जो है वह कहाँ चले गए हैं, उसी की बात यहाँ पर आपको हो रही है। जैसे गुड कार्टून, तो यहाँ पे देखिए जो आपको आर के लक्ष्मण ब्रशिंग अप द ईयर्स, तो आर के लक्ष्मण ब्रशिंग अप द ईयर्स ने ये फिगर आपको यहाँ पर मेंशन किया बनाया। अब आपको यहाँ पर देखिए कि हम इसको इस चीज़ में कर सकते हैं। अब देखिए parties try to persuade people why their policies are better than others. They seek to implement these policies. They seek to implement these policies by winning popular support through election. Thus parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve a partnership. Thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. A political party has three components: the leader, the active member. The three components. First component is the leader, and second component is the active member, and third component is the followers. अब आपको यहाँ पर देखिए क्या कि इसी आधार पर आपको देखिए एक चीज़ यहाँ पर कहा कि इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ और से बेहतर वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। इससे उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुकाव होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखिए नेता है, दूसरा हिस्सा आपको सक्रिय सदस्य और तीसरा अनुयायी या समर्थक आपको है। तो फिर आप देखिए फंक्शन भी यहाँ पर कुछ देखिए, तो व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट देखिए पार्टीज कंटेक्ट इलेक्शन। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर fought mainly among the candidate put up by political parties. Parties select their candidate in different ways. Parties select their candidate in different ways. In some countries, such as the USA, members and supporters of a party choose its candidate. Now, more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose a candidate for contesting election. अब एक राजनीतिक दल के कार्य पर ध्यान दीजिए। क्या पहला कार्य जो था, राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देश की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं।
अभी हम देखिए क्या है कि दूसरा आपको यहाँ पर क्या है, दूसरा आपके यहाँ पर वर्ड है जो पार्ट, दूसरा आपके यहाँ पर वर्क है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द voters choose from them. Each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction, to provide a direction in which policies can be in which policies can be formulated by the government. This is what the party do. A party reduce a vast multitudes of opinion into a few basic positions which is supports a government is expected to base its policies on the line taken by a ruling party. देखिए यहाँ पर जो खास बातें कही गई थी कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग-अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग-अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में सामान्य मिलते-जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियाँ यही काम करती हैं। पार्टियाँ तरह-तरह के विचार, पार्टियाँ तरह-तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है, जिनका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः आपको शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। फिर आपको आगे यहाँ पर दिया गया है आपको एक यहाँ पे था क्या कि आप ग्लोसरी में देखिए कुछ वर्डों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पार्टीशन देखिए यहाँ पर क्या है, तो पार्टीशन की जो आपको शासक दल देखिए पार्टीशन पार्टीशन मतलब क्या है, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी ग्रुप और फैक्शन partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। ये बात यहाँ पर आपको कहा गया है। तो इसमें थोड़ा सा आप तो यहाँ पर देखिए चूँकि ये जो आपको अंग्रेजी का जो था इसका आप यहाँ पर हिंदी में आपको जो मीनिंग है शासक दल, देखिए जिस दल का शासन हो यानी कि देखिए शासक दल किसके बोलते हैं कि जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसी को हम शासक दल बोलते हैं। तो फिर आपको ग्लोसरी में देखिए यहाँ पर कोई ऐसे खास वक्त तो नहीं, हिंदी में जो ग्लोसरी है वो नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पर अंग्रेजी का जो ग्लोसरी पार्टीशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया हिंदी में। तो खैर कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो देखिए पार्टीशन क्या बोलते हैं कि ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी ग्रुप और फैक्शन। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक ए साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। तो यहाँ पर बात इसको I ended this video from here and ahead for this video I will make tomorrow।